हाँ, देखो, चलो अभी लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द रजिस्टर array, program counter, stack pointer, incrementer and decrementer latch, as well as instruction register. Now, in continuation with the last lecture, we have to understand the instruction decoder and machine cycle encoder. Now, just I am reviewing last point. What we have seen in the last point, if there is a memory interface with microprocessor, it carries a program. That program instruction is fetched by the program counter. That fetch instruction is travel from the internal data bus and reaches to the instruction register. We have seen the function of instruction register, that is, it just hold the instruction. It is not doing any kind of operation with that instruction, and this register is not available for user programming. Now, the instruction from the instruction register is passed to the instruction decoder and machine cycle encoder. Once that instruction is reached here in the section decoder, the decoder will diagnosis. The decoder will understand what type of instruction is sent by the system, or user would like to execute this type of instruction. इस इंस्ट्रक्शन में हमें कौन से प्रकार का, कौन से टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो पहला इंडिकेशन रहेगा वहां पर ऑपरेशन. सेकंड इंडिकेशन रहेगा वह ऑपरेशन के लिए डाटा कहां से आ रहा है. डाटा इंटरनली प्रेजेंट है कोई रजिस्टर में, या डाटा कोई एखादे रजिस्टर में प्रेजेंट है. एक डाटा अगर इंटरनल रजिस्टर में होगा तो दूसरा डाटा यूजर प्रोवाइड कर रहा होगा या मेमोरी सेंड कर रही होगी. तो इट मे बी अ कॉम्बाइन. ओके, इट विल बी डिपेंड ऑन द instruction given by you. Okay, and then third point is here how much amount of the time will be required to carry out that operation. Okay, so these three things are extracted by the instruction decoder and machine cycle encoder. Okay, I'm telling you, showing you the theoretical one, whatever I have written for you. See these three things in front of you. Instruction decoder, it accepts the operation code of the instruction from the instruction register and decode the instruction. The decoded status contains type of instruction, type of register, and time to perform that operation. Then this gathered information is sent to the control logic to perform the operation. Okay, now once the control logic circuit will direct this decoder to pass that information. Okay, that information contain what type of operation is to be performed, who is going to perform, how many operand byte the instruction has. Okay, similarly machine cycle encoding unit will provide the time duration required for the operation. Getting everyone? Without? Now, I just copy it, यानी आपको यहाँ पर साइड बाय साइड में immediately switch हो सकूंगा. Okay, now here in front of you the block diagram is there. Now the timing and control unit will be there. Now we will see what is the function of timing and control unit. See, the timing and control unit
The purpose of this unit is it accepts information from the instruction decoder and generate different control signal to perform the operation which is specified by the instruction. Got the meaning? Okay. The control unit is responsible for communication and synchronization between the microprocessor and peripheral. Okay. Then control unit will generate the signal for enabling or disabling the different blocks for the operation. Okay. यानी वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा जैसे जैसे उसको वह पर्टिकुलर सेक्शंस की जरूरत रहेगी. सारे ब्लॉक एक्टिवेट रहेंगे क्या? नहीं. ओके. ओनली the required blocks are get enabled or disabled by the control unit. This signal do synchronization and operation between the all internal and external blocks as that instruction is executed. This block accept clock input to perform sequencing and synchronizing operation by generating different status and control signals. Okay, this is the main functionality behind the timing and controlling. Okay, now ये सेक्शन हो गया. अभी एक एक करके हम सीरियल IO, ओके, देन एड्रेस डाटा बफर या एड्रेस बफर और इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी देखते हैं. ओके, तो सी पहले हम देखते हैं यहाँ पर सीरियल IO कंट्रोल. ओके, अभी सीरियल IO कंट्रोल जो सेक्शन है वह सेक्शन कुछ इस तरह है. एक छोटा सा सेक्शन रहेगा. ओके, यह सेक्शन का नाम रहेगा सीरियल IO कंट्रोल. ओके, यहाँ दो इनपुट रहेंगे. एक पहला इनपुट रहेगा और एक दूसरा आउटपुट रहेगा. पहले इनपुट का नाम रहेगा SID यानी सीरियल इनपुट डाटा और दूसरा रहेगा SOD यानी सीरियल आउटपुट डाटा. फिर से कहता हूं, यहाँ दो सिग्नल रहेंगे. पहला सिग्नल रहेगा एज इनपुट, उसका नाम है SID यानी सीरियल इनपुट डाटा, और दूसरा सिग्नल है वह आउटपुट सिग्नल है, उसका नाम रहेगा सीरियल आउटपुट डाटा. गॉट इट? नाउ serial IO control, it has two control signals named SID and SOD for serial data communication. These signals are used for serial communication. SID and SOD are an active high input and output serial port pins. Okay, यानी SID और SOD जो लाइन्स है वह हाई इनपुट पिंस रहेंगे, उनको एक्टिव हाई इनपुट वहां प्रेजेंट रहता है. जैसा आपको डिजिटल फैमिली में बताया होगा, एक्टिव लो सिग्नल, एक्टिव हाई सिग्नल, ओके, इन्वर्टेड सिग्नल. ओके, इसी तरह यहाँ पर सिग्नल को यहाँ एक्टिव हाई इनपुट कहा है. ओके, तो SOD एंड SID आर एन एक्टिव हाई इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल. ओके, SID इज यूज्ड टू एक्सेप्ट 1 bit अंडर द सॉफ्टवेयर कंट्रोल. SID का फुल फॉर्म है सीरियल इनपुट डाटा. नाम के हिसाब से काम, सीरियल इनपुट यानी सीरियली वह डाटा रिसीव करेगा 1 by 1 bit. तो 1 bit एट अ टाइम, लेकिन वह 1 bit कैसे रिसीव होगा? अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल. गॉट द मीनिंग? नाउ व्हेन अ रीम नेम instruction is executed, remember when RIM means ream, okay, read interrupt mask. ream का फुल फॉर्म क्या है? read interrupt mask. okay, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, the SID pin data is loaded into D7 bit of accumulator. okay, हमारा accumulator रजिस्टर रहेगा. A रजिस्टर को हम accumulator कहते हैं. उस रजिस्टर में टोटल कुल मिलाकर 8 बिट है. आउट ऑफ 8 बिट, ओके, हर बिट को यहाँ पर नाम है D0, D1, D2, D3, D4, D5 और D6 एंड D7. तो आउट ऑफ दिस 8 बिट
जो D7 नंबर का बिट है वह बिट रिसीव करेगा यह डाटा बिट। ओके, सो जैसे ही यहाँ यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो SID पिन का जो भी डाटा रहेगा वह यहाँ इस बिट में कॉपी होगा। ओके, गॉट द मीनिंग? और वह डाटा माइक्रो प्रोसेसर फिर उसे रिसीव करेगा। यानी आपका जो डाटा है वह सीरियली 1 by 1 बिट यहाँ एक्सेप्ट होगा। सेकंड पॉइंट, व्हेन सिम मींस सेट इंटरप्ट मास्क। ओके, सिम यानी सेट इंटरप्ट मास्क। ओके, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी यानी इसका काम रहेगा टू सेंड अ डाटा इन सीरियल बिट्स। ओके, तो SOD पिन will be set or reset according to the status of D7 bit. ओके, ये जो बिट है, ये जो बिट आपको भेजना है, आपको सेंड करना है एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, तो वह एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए भेजने के लिए सीरियल आउटपुट डाटा इस पिन का आपको यूज करना पड़ेगा। इस पिन के ऊपर डाटा बिट 0 या 1 एनेबल होगा। ओके, तो ये एनेबल होगा, लेकिन वो कहां से आएगा? वो आएगा D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर। D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर में वह माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही यह सिम नाम की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो यह बिट पुट आउट होगा और वह बिट D7 से SOD लाइन के ऊपर ट्रांसफर होगा। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्ट कंट्रोल। हमारे माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ पर इस तरह का एक इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ओके, इस इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन को मैं राउंड अप कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह का इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन रहेगा। इसके ऊपर कुल मिलाकर देखिए, अगर आप ऊपर के साइड में अगर पिन्स देखोगे तो कितने पिन है काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पिन है। आउट ऑफ 6 पिन के एरो अगर देखोगे तो कुछ इन एरो है और एक आउट एरो है, राइट? एक आउट एरो है और 5 इन एरो है वहां पर। ये इन एरो है, ये इन एरो है जो मैं यहाँ पर राइट मार्क कर रहा हूँ, ये इन एरो है, ये इन एरो है, ये इन एरो है। ओके, और ये आउट एरो रहेगा, ये आउट एरो रहेगा, इसके द्वारा डाटा पास होगा। ओके, तो बाकी इन सिग्नल रिसीव करेंगे बाकी, और ये आउट सिग्नल सेंड करेगा। गॉट इट? चलिए अभी देखते हैं इसका क्या प्रयास या क्या पर्पस रहेगा। इस सेक्शन का नाम है इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। अभी मैंने पहले ही बताया था कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट, किसी को याद है? देखिए मैंने हाईलाइट भी करके रखा है, आप अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यह सेंटेंस ऑलरेडी कहा है आपसे। इंटरप्ट इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट। यह रिक्वेस्ट सिग्नल है। यह रिक्वेस्ट सिग्नल हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरल या इंटरनल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जनरेट हो सकता है। ओके, सो हमारे पास इंटरप्ट आएंगे दो तरह के। एक्सटर्नल पिन अगर बोला तो हार्डवेयर और इंटरनल बोला तो सॉफ्टवेयर, यानी दो तरह के सिग्नल यहाँ रिसीव करने की इस ब्लॉक में, इस इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट में कैपेबिलिटी है। यानी उसे यहाँ पर दो तरह के इंटरप्ट प्रेजेंट रहेंगे, पहला हार्डवेयर इंटरप्ट और दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। नीचे भी लिख के दिया है आपको टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए एक एक करके देखेंगे अभी। पहले ये देखते हैं ये पॉइंट्स कि इसका फंक्शन क्या है। This block accept the request from external peripheral। अभी एक्सटर्नल जो पेरिफेरल है वह इस सिग्नल्स के यूज करेंगे और यहाँ यह सिग्नल्स के यूज करके वह यहाँ माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करेंगे। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? वो रीड या राइट। ओके, तो रीड या राइट प्रकार के जो ऑपरेशन है वह यहाँ जो एक्सटर्नल पेरिफेरल है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। It receive hardware interrupt signal and send an acknowledgement for receiving the interrupt signal। अभी यह जो यूनिट है यह हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करेगा और जैसे ही वो रिसीव करेगा, इन केस इफ ही इज रेडी टू entertain that external peripheral device, then it may send an acknowledgement signal। Okay,
तो यहाँ इस तरह का ऑपरेशन होगा। यानी अगर रिक्वेस्ट आया तो वो रिक्वेस्ट को ग्रांट करना और ग्रांट करके उसे एक्नॉलेजमेंट देना, इस पर्टिकुलर सेक्शन का काम रहेगा। इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड बाय एक्सटर्नल डिवाइस टू द प्रोसेसर। इंटरप्ट ये जो सिग्नल है ये कौन जनरेट करेगा? एक्सटर्नल पेरिफेरल, वह प्रोसेसर को भेजेंगे टू रिक्वेस्ट द प्रोसेसर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और टास्क और वर्क। ओके, उसे कुछ परफॉर्म करना होगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, एग्जांपल कोई रीड करना होगा डाटा या कोई राइट करना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में यह प्रेजेंट होगा। Mainly in the microprocessor based system, the interrupt are used for data transfer between the peripheral and microprocessor. Okay, तो यह particularly जो interrupt signal है, यह signal use किए जाते हैं generally data transfer between the peripheral and microprocessor. The processor will check the interrupt always at the second टी स्टेट ऑफ द मशीन साइकिल। अभी मैंने आपको टाइमिंग डायग्राम नहीं बताया है, जस्ट रिमेंबर द सेंटेंस। ओके, तो मैं इसको आगे एलेबरेट करूंगा। द प्रोसेसर विल चेक द इंटरप्ट ऑलवेज एट द सेकंड स्टेट ऑफ टी स्टेट ऑफ द लास्ट मशीन साइकिल। इफ देयर इज एनी इंटरप्ट, इट एक्सेप्ट द इंटरप्ट एंड सेंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू द पेरिफेरल। अगर वहां कोई इंटरप्ट अगर आया तो वह इंटरप्ट अगर उसने प्रेडिक्ट किया कि यस देयर इज अ वैलिड टाइप ऑफ इंटरप्ट इज रिसीव्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर और दिस कंट्रोल यूनिट, देन इमीडिएटली एज इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द पेरिफेरल डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। लेकिन ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट किस टाइप का सिग्नल है? ब्रैकेट में लिख के दिया है एक्टिव लो। एक्टिव लो तरह का सिग्नल यह रहेगा। द वेक्टर एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्ट इज स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर। नाउ यहाँ हर पर्टिकुलर पिन को एक एड्रेस रहता है, वह एड्रेस फिक्स रहता है। रिमेंबर, अगर आप कहीं रहते हो, जो घर है आपका, वह घर को एक स्पेसिफिक फिक्स एड्रेस है। ओके, तो वह एड्रेस सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वही लोग जो जिनको पता है कि भाई यहाँ ये पर्टिकुलर ये पर्सन का एड्रेस है, तो वो इस एड्रेस को लेकर आपके पास विजिट करते हैं अगर कोई काम रहा तो। इन द सेम फैशन, अगर आपको कोई पेरिफेरल को कम्युनिकेट करना है तो वह पेरिफेरल को कम्युनिकेट करने के लिए वह पिन्स को यूज करेगा। तो पिन्स को यूज करते समय वह पिन का एक फिक्स एड्रेस रहता है, वो एड्रेस के द्वारा वह आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर पिन मुझे इस तरह यूज करनी है, उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। वह एड्रेस दिया तो वो पिन्स उसे यूज करने के लिए अलाउ किया जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वह एड्रेस को यहाँ कहा जाता है फिक्स एड्रेस। लेकिन फिक्स एड्रेस को यहाँ हमारे सिस्टम में उसे वेक्टर एड्रेस कहे जाते हैं। गॉट इट? द मीनिंग वेक्टर एड्रेस of a particular interrupt is stored in the program counter. ओके, कहाँ स्टोर्ड होता है? वह प्रोग्राम काउंटर में वह प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे ही वो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वह ऑपरेशन स्ट्रेटजी कैरी आउट किया जाएगा। द प्रोसेसर executes an interrupt service routine address in the program counter. अभी देखिए, अगर कोई इंटरप्ट अगर आया है, अगर वो इंटरप्ट अगर कोई डिमांड कर रहा है तो रिक्वेस्ट है, इट में रीड डाटा, इट में राइट डाटा। ओके, सो दैट्स व्हाई उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू राइट? मैन्युफैक्चर लिखेगा या प्रोग्रामर लिखेगा या जो यूज करने वाला है वह लिखेगा? देखो, इंजीनियर सिस्टम प्रोवाइड करता है, यूजर उसे यूज करता है, तो प्रोग्राम लिखने का काम रहेगा प्रोग्रामर का। वो प्रोग्रामर वह इंस्ट्रक्शन लिख के देगा और वह इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखी रहेगी? एक पर्टिकुलर मेमोरी में। एक पर्टिकुलर मेमोरी में वह इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी जो प्रोग्राम है वह लिखा रहेगा। वह प्रोग्राम का जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, वह एड्रेस को यहाँ पर उसे वेक्टर एड्रेस करके आइडेंटिफाई किया जाएगा और वह एड्रेस ही पिन को दिया जाएगा। वह पिन का ही एड्रेस वह पर्टिकुलर
प्रोग्राम को यूज किया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यानी जो वेक्टर एड्रेस है पिन का, वही एड्रेस के ऊपर प्रोग्रामर वहां प्रोग्राम लिखेगा। और जब यहाँ इंटरप्ट कोई अगर आता है तो इंटरप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ये प्रोग्राम काउंटर को समझाया जाएगा कि ये प्रोग्राम काउंटर बाबा रे, आप ये पर्टिकुलर एड्रेस लो और ये एड्रेस के ऊपर जाइए और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम और पर्टिकुलर एड्रेस पर जाने के बाद वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करिए। गॉट द पॉइंट? तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, एक एक करके वो इंस्ट्रक्शन पास करेगा और वो अकॉर्डिंगली दैट इंटरप्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन वह एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ऐसा यहाँ जैसे ही वह प्रोग्राम फिनिश होगा, दैट प्रोग्राम विल रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम बाय द रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ओके, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पूरी डिटेल में शायद जानकारी नहीं होगी, थोड़ा समझ में आएगा, बट डोंट बॉदर अबाउट इट। बस खाली आपको अगर इतना भी समझा कि भाई देयर इज द इंटरप्ट इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट। ओके, it will accept the request from the external peripheral devices. There are two types of interrupt, hardware and software. इतनी भी बात समझ में आ गई तो बहुत है। I will clarify you each and everything one by one. Okay, now we will see the types of interrupts. Okay, तो अभी मेरे पास लिस्टेड है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट। तो वह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट मैं यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, मैं भी पूरी डिटेल जानकारी तो नहीं देता हूँ। ओके, तो देखिए लिस्टिंग करके रखा है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन कौन से रहेंगे? हमारे पास 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है? 8। नाम याद रखोगे, RST 0 से लेकर RST 7, टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। ओके, हर एक का एड्रेस रहेगा। यहाँ पर मैं एड्रेस हाईलाइट करता हूँ, मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ये स्क्रीन, तो आपको यहाँ बराबर प्रॉपरली दिखेगा। RST 0 का एड्रेस है 0000H। ओके, 1 RST 1 का एड्रेस है 0008। देन RST 2 का है 0010। देन 3 के लिए है 18H, 4 के लिए है 20H, 5 के लिए है 28H, 6 के लिए है 30H और 7 के लिए है 38H। नंबर याद रखिए, 0 अगर याद रखा, बस खाली 8 के डिफरेंस से बाकी सारे नंबर हैं। ओके, आप अगर 8 ऐड करोगे, ओके, तो 0 + 8 8 हो जाएगा। 8 + 8 16 बोले तो उसका डेसिमल, 16 इज डेसिमल, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 16 का हेक्साडेसिमल आएगा 10, राइट? फिर से उसमें 8 ऐड करिए, 18 + 16 6, ओके सॉरी 18 + 8 नियर अबाउट 20। ओके, ऐसे आपको आगे मूव होता है, याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रहेंगे 8। यह 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के नाम रहेंगे RST 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सिमिलरली हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट अवेलेबल है। हार्डवेयर इंटरप्ट में आपको यहाँ इस तरह के हार्डवेयर इंटरप्ट रहेंगे, वह नाम रहेंगे उनके ट्रैप, TRAP, RST 7.5, 6.5, RST 5.5 एंड लास्टली INTR। और उनके एड्रेसेस भी यहाँ पर टेबल में देकर रखे हैं। RST 7.5 का एड्रेस है 3CH, RST 6.5 का एड्रेस है 34H। ये याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। RST 5.5 का एड्रेस है 2CH और ट्रैप का एड्रेस है 24H। इस तरह इनके एड्रेसेस रहेंगे, याद रखिए। तो नाम मैंने सिर्फ बताया, याद रखिए नाम। हार्डवेयर इंटरप्ट कितने हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8085 में? 5। आंसर क्या रहेगा आपका? 5। कौन कौन से? ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट रहेंगे। ओके, बस इतना ही आपको यहाँ अभी काफी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। गॉट एवरीवन? सबको समझ में आया ये सेक्शन? ओके, नाउ अभी और एक पॉइंट यहाँ पर रह गया, मैं उसे फास्टली क्लियर कर लेता हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पर एड्रेस बफर है और एड्रेस डाटा बफर है, अगर आपको यहाँ सेक्शन दिख रहा होगा। ओके, तो एड्रेस बफर और एड्रेस डाटा बफर। ओके, तो हमारे
माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कुल मिलाकर एड्रेस बस अवेलेबल है। तो एड्रेस बस में टोटल कुल मिलाकर 16 एड्रेस लाइन अवेलेबल है। ओके, तो 16 एड्रेस लाइंस यहाँ पर कुछ इस तरह रहेगी। तो वह 16 एड्रेस लाइंस दो पार्ट में ब्रेक की गई है। पहला पार्ट है AD0 टू AD7 यानी A0 टू A7, और दूसरा सेक्शन है यहाँ पर A8 टू A15। टोटल कुल मिलाकर A0 से लेकर A15 एड्रेस लाइंस अवेलेबल रहेगी। इस वजह से वह एड्रेस लाइंस के लिए 8 बिट के एड्रेस बफर यहाँ सामने प्रेजेंट है। तो ये 8 बिट का हायर ऑर्डर एड्रेस बफर रहेगा और ये 8 बिट का लोअर ऑर्डर एड्रेस बफर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। आपको हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर मैंने क्लियर किया था एड्रेस और डाटा का। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर ये 16 बिट का एड्रेस यहाँ प्रेजेंट है। इन द सेम फैशन हमारे पास डेटा बस अवेलेबल है। ओके, 8 बिट की डेटा बस अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई वह 8 बिट की डाटा बस बाय डायरेक्शनल है। तो वह बाय डायरेक्शनल डाटा बस के नंबर है, नाम है D0 से लेकर D7। तो वह D0 से लेकर D7 यहाँ पर वह नंबर आपको यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ओके, कोई डाउट? अभी ये पॉइंट मेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो मैं ये पॉइंट को यही खत्म करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर यह वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो की लेंथ नियर अबाउट 30 मिनट अबव हो गई शायद। ओके, so that's why I am going to end up this lecture at this moment. Okay, next lecture I will tell you about the pin details of the 8085. Okay, तो चलिए अभी यहाँ पर फटाफट फटाफट आपका अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को खत्म करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।